stopping me. बड़ा भाई आपके साथ रहेगा. If you need any help, I easily, but so casually. No creature, locked in mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. I said 23. यार ग्रेजुएशन भी हो गया, सीए भी ज्वाइन कर लिया. ऐसा लग रहा है असली कंफ्यूजन तो अभी शुरू हो रहा है. अरे क्या हो गया? इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे टेंशन कैसे ना लूं? कल तक सब बोलते थे कि सीए बन जाओ, लाइफ तो सेट है एकदम. अब हर दूसरे दिन कोई आके बोल देता है कि एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, फ्यूचर चेंज हो रहा है. कभी कभी लगता है अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बट कहीं हम पीछे ना रह जाएं. हाँ, वो तो है. बट ऑनेस्टली आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वाई टुडेज सेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अब सिर्फ प्रोफेशनल बनना ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनना इम्पॉर्टेंट है. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक आफ्टर द लंच सेशन. तो लंच कैसा था सबका? गुड? ओके. तो होपफुली अब सबकी एनर्जी भी वापस आ गई होगी, बिकॉज द नेक्स्ट सेशन इज समथिंग दैट वी आर ऑल वेरी क्यूरियस अबाउट. आई एम अंकिता एंड आई एम श्रेया. वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, सीए स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप दो चीज़ों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, डेडलाइंस और स्क्रीन्स. और अब स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा क्या दिखता है हमको? एआई. Exactly. A few years back, artificial intelligence sounded futuristic. But today, it is transforming everything around us, which means understanding AI is no longer optional for professionals, because tomorrow's professionals will not just work hard, they'll also work smart. And that perfectly brings us to our next session. Artificial intelligence and AI advantage. AI tools every CA student must know. To begin this session, may we request our respected session chairman, CA B. Manoj Kumar Patro, and our esteemed speaker, CA Shivam Palan, to kindly grace the stage. We would also like to invite our student presenters, Ms. Nida Fareen, Ms. Shivangi Aprajita, Ms. Palak Agrawal, to kindly accompany them to the stage. A warm round of applause for all our distinguished guests, please. As we move ahead, we are honored to have with us CA B. Manoj Kumar Patro, a distinguished chartered accountant, cost accountant, and founder partner of MK and MK Chartered Accountants. As former chairman of Bhubaneswar branch of ICAI and a respected leader of the profession, Sir has played a significant role in strengthening the professional through leadership, professional development initiatives, and student-focused programs. He also serves as an independent director in one of the state PSUs, namely Odisha State Seas Corporation Limited. We are truly honored to have him as the session chairman for this knowledge session. May we request Jyoti Prakash Das to kindly present a sapling and memento to our respected session chairman, CA B. Manoj Kumar Patro. And to guide us through this exciting and evolving space, we have with us someone who has inspired thousands of CA and finance students across the country, CA Shivam Palan. Sir became a chartered accountant at the young age of 21 and soon discovered his passion for teaching, mentoring, and building careers. Since 2020, he has helped lakhs of CA and finance students prepare better, get placed faster, and build strong careers. And today, his mission is simple:
to transform India's finance talent ecosystem and create more career success stories. And honestly, one line perfectly sums up his impact when it comes to placements. You name the company, he has placed students there. May we request Ayushman Acharya to kindly present a sapling and memento to our esteemed speaker, C.A. Shivam Balan. We now request Devanshi Modi to present a sapling and memento to Ms. Nida Fareen. Now may I request Usha Rani Behra to present a sapling and memento to Ms. Shivangi Aprajita. I now request Avinash Jena to present a sapling and memento to Ms. Palak Agrawal. Now, it's time for a session that looks straight into the future of our profession. The topic is AI. The speaker is one of the most recognized voices in AI for finance, and the audience is full of chartered accountants and future chartered accountants. Sounds like the perfect combination, doesn't it? So without any further ado, may I request our esteemed speaker, C.A. Shivam Balan, to take over the session. Please welcome him with a huge round of applause. Hello. Chalo, great. Good afternoon, everyone. क्या बात है, नूडल्स असर कर रही है, हाँ नहीं कर रही, चलो great. So it's great to have all of you here, right? And of course, मैं हमेशा सर को सेशन के स्टार्ट के पहले ही कह रहा था कि एक बार इंसान गलती से आ सकता है, बट अगर आप दोबारा आ रहे हो मतलब कुछ तो अच्छा होगा. एंड दिस इज माई सेकेंड टाइम आई एम हियर टू भुवनेश्वर. थैंक्स फॉर द लव विच एवरी वन ऑफ यू हैव गिवन मी विच इज देयर. और आज का सेशन एआई पे है, तो क्या है, थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे ना, 3 Idiots में कहते हैं ना, डेमो दिखाओ, राइट? तो विल कीप इट इंटरेक्टिव, विल कीप इट एनर्जेटिक, ठीक है? और वहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाइए. प्लीज़ फोकस ऑन वॉट एवर थिंग्स आई एम गोना बी शोइंग यू. आपको बहुत सारा नया लर्निंग होगा. मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा एंड आई एम गोना बी शोइंग यू लॉट ऑफ थिंग्स विच विल ब्लो अप योर माइंड. ठीक है भैया, इसको कनेक्ट कर देना. चलो ग्रेट. सो बिफोर वी स्टार्ट इन, थोड़ा सा एक एनर्जी वाला गेम खेल लेते, क्योंकि खाना खाए हो तो थोड़ा असर भी कर रहा है कि नहीं? सो एक छोटा सा एनर्जी वाला गेम है. मैं एआई बोलूंगा, जिस टोन में बोलूंगा उसी टोन में आपको एआई बोलना है, ठीक है? तो यू हैव टू कॉपी मी द वे आई एम सेइंग इट, ठीक है? डन, स्टार्ट करें. एआई 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 एआई. क्या बात है, चलो ग्रेट. ये नहीं बोलना था. चलो ग्रेट. दिस इज मी. आई थिंक वेरी वेल इंट्रोडक्शन गिवन बाय द कैंडिडेट आउट. दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम
इफ यू कुड सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, आई वॉन्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन, राइट? What you can see using this diagram, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इससे कोई कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी भाई बताओ, क्या दिख रहा है तुमको इस पे? वो कह रहा है एयर हॉस्टेस नहीं दिख रही है। वो प्लेन के अंदर है भाई। ठीक है, बताइए। यस, एनी वन ऑफ यू? हाँ, शाउट इट लाउड, शाउट इट लाउड। कौन बोलेगा? यस मैम, आप बोलिए। ओके, शी इज सेइंग द एयरप्लेन इज देयर ऑन द रनवे, लैंड किया है। ओके, गलत डायरेक्शन में, कैसे क्या? अच्छा, रनवे उस तरफ है। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी, इधर से। यस मैम, आप बताइए। हाँ, स्मॉल वन इज फॉलोइंग दैट। ठीक है, नाउ सी दिस एनालॉजी ऑफ एरोप्लेन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। जब प्लेन उड़ता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन तभी होता है। एग्री? राइट? है ना? जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो मैक्सिमम एनर्जी दैट इज गोना बी रिक्वायर्ड व्हेन इट इज टेकिंग इट ऑफ। नंबर 2, द ब्यूटी ऑफ अ प्लेन इज द पाथवे इज डिफाइंड। अगर वो जल्दी टेक ऑफ करेगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, और लेट टेक ऑफ करेगा तो भी क्रैश हो जाएगा। एग्री? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जब प्लेन उड़ाया जाता है? और वो है टाइम। एग्री? टाइमिंग हैज टू बी परफेक्ट। सो सबसे पहला मिथ रिगार्डिंग एन एआई, सर व्हाट इज द राइट टाइम टू लर्न? टुडे इज द राइट टाइम एंड एवरी वन ऑफ यू आर सिटिंग हियर, दैट इज द राइट टाइम यू हैव टू स्टार्ट। हम लोग एआई की पॉसिबिलिटीज देखेंगे, एक्सट्रीम कहां तक जा सकता है, स्पेसिफिक विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस में एआई कहां तक जा सकता है वो हम सीखेंगे, और डेमो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट सबसे पहला एनालॉजी दिमाग में ये डालिए कि भैया टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल स्टार्ट लर्निंग नाउ यू विल गेट एन एज, इफ यू विल नॉट स्टार्ट लर्निंग नाउ डोंट वरी, समवन एल्स विल गेट एज। वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव आउटसाइड। कोई आपके लिए नहीं रुकेगा कि भैया इसको नहीं आता तो मैं नहीं सीखूंगा। People are learning and people are doing great things in a life. Okay. So that was a first learning which is there. कुछ समय पहले मुझे बहुत बोर हो रहा था लाइफ में, तो मैंने क्या किया पता है? जो आप लोग भी करते हो और आपने काफी लोगों ने किया होगा। What you must have done, you must have put the paper of CA inter or final in ChatGPT and ask, hey ChatGPT, tell me answer of this MCQ. किया था क्या किसी ने? कर लेते हैं कभी कभी। Okay. Now, let us assume that this is an auto rickshaw which is there. I want you to think extreme. एकदम extreme सोचिए कि 10 साल बाद ऑटो रिक्शा कैसे दिखेंगे। Extreme. हाँ, if you can just shout it loud. हाँ जी भाई, कैसे दिखेंगे? क्या लगता है तुम्हें? हाँ तुम, yes, black blazer. हाँ जी भाई, क्या ऑटो रिक्शा उड़ेंगे? इंडिया में है भगवान। ठीक है, हाँ। 10 साल बाद तुम्हें क्या लगता है ऑटो रिक्शा कैसे दिखने चाहिए? हाँ जी मैम, ऑटो रिक्शा एकदम मर्सिडीज बन जाएगी। हाँ, 5 चक्के वाला ऑटो। भाई साहब, ये तो एक्सट्रीम ही सोचने लग गई मैम। ठीक है, यस। हाँ जी मैम, आप बताइए व्हाट यू आर थिंकिंग। यस यस, हाँ हाँ यस। शायद होंगे ही नहीं। चलो ठीक है। Now I asked the same question to AI and let me just show you what AI gave it to me. ठीक है? है ना? क्या सही लग रहा है एकदम, है ना? है ना? इस ऑटो में बैठने का मजा ही कुछ और होगा यार। और मजेदार चीज इसमें पता है क्या है? There's no driver. दिख रहा है क्या? There's no driver. Number 2, the fun fact is, it is saying that ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो ये एआई अज्यूम कर रहा है कि सोलर पैनल लगा होगा, ड्राइवरलेस ऑटो रहेगा और ऑटो चलेगा मस्त। कैन यू थिंक दिस इज पॉसिबल? अरे यस और नो? पॉसिबल है? अच्छा, तो जब ये चीज आपके रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है तो डोंट यू थिंक सो द वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस कैन ऑल्सो गेट ऑटोमेटेड? हो सकता है। उसी को आज मैं थोड़ा सा रियलिटी दिखाऊंगा कि कैसे वर्क होता है, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, हाउ द ऑटोमेशन इज वर्किंग। ठीक है, उसके लिए आई एम गोना बी टीचिंग यू 5 इंटरेस्टिंग टूल्स विच इज देयर। बट बिफोर आई मूव टू दैट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे विच सेज दैट द हाइएस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स
if you could see it out, is of course for big data specialists, and we guys are the one who do a data crunching, right? And number two, there's a high demand of a fintech engineers, if you could see it out. Now, to teach you out here, I am going to be teaching you 5 important tools. कुछ को मैं जीरो से सिखाऊंगा, कुछ का सिर्फ डेमो दूंगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स एट द एंड आई विल शेयर यू वन फाइल जहां पे सबके प्रॉम्प्ट्स डले हुए हैं. वाओ, है ना? तो आपका काम आसान हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विथ वन ऑफ माय फेवरेट एआई टूल. बट बिफोर दैट, जिसको एआई नहीं पता है, व्हाट इज एआई? सिंपल, इट इज नथिंग बट व्हाट इट इज डूइंग. इट इज अ मशीन टू थिंक एंड मेक डिसीजंस लाइक अ ह्यूमन. आसान भाषा में बोले तो एनीथिंग विच इज रिपीटेटिव, anything which is rule based and anything which is manual can be automated. सर ये थ्योरी मत बताओ, प्रैक्टिकल देखते हैं. चलो, तो सबसे पहला टूल जो मैं आपको बताने वाला हूं, which is a game changer for lot of chartered accountants and the people out sitting out here, is a Google App Script. अब देखते हैं Google App Script में क्या पावर है. What is the power of a Google App Script? Google App Script क्या करता है? It helps connect 2 things of entire Google or 3 things of a Google product which can be connected together. ठीक है, अब देखिए मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूं तो आपको मजा आएगा. मान लीजिए मुझे HR को मेल भेजना है फॉर अ आर्टिकलशिप और फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और फॉर अ क्वालिफाइड जॉब. एक नॉर्मल इंसान कैसे मेल भेजता है? ईमेल खोलेगा, टाइप करेगा और भेजेगा. बट आज के बाद, क्योंकि आप अब AI के स्टूडेंट्स बन चुके हो, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ HR का ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद अपने आप मेल जाएगा, अपने आप फॉलोअप जाएगा जब तक कि वो जवाब नहीं देगी. हाँ, HR को भेजना है. ठीक है, अब इसका मैं डेमो दिखाता हूं ये कैसे वर्क करता है. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जिसका मैं ईमेल आईडी डालूं कि उसको मेल जाएगा ऑटोमेटिकली और उसको फॉलोअप भी जाएगा. अगर वो रिप्लाई आ जाएगा तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली शीट में अपडेट हो जाएगा. विच इज दैट. कोई आना चाहता है वॉलंटियर? हाँ जी भाई, आ जाइए, आप आगे बैठे, आ जाओ. ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू अ डेमो कि हाउ डज इट वर्क्स. कैसे ये टूल बनाया, ऑफ कोर्स इस पे मैं बाद में जाऊंगा. हाँ जी, हाँ जाओ, ऊपर आ जाओ. डन. आपका बस ईमेल आईडी इस पे टाइप कर दो HR ईमेल में. मान लीजिए ये HR का नाम है, आपका भी नाम लिख देना दोस्त, विच इज देयर, है ना? अपना ईमेल आईडी लिखना, ठीक है? नहीं तो फिर पता बड़ा मेल ही नहीं आया है फिर. ठीक है, तो अपना नाम लिख लीजिए, HR का ईमेल आईडी लिख लीजिए, कंपनी नेम लिख लीजिए, रोल लिख लीजिए. आगे हमने पूरा डेटाबेस डाला हुआ है कि कौन सा ईमेल टेम्पलेट जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए. सिर्फ हमको इसके बाद रेडी पे क्लिक करना है, अपने आप मेल जाएगा, अपने आप फॉलोअप जाएगा, अपने आप सब कुछ जाएगा. ठीक है, यस, ठीक है. अब देखिएगा, तो इस ड्राफ्ट को व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडी. ठीक है, अब मेरे हाथ ऊपर है, अपने आप देखिएगा शीट पे अपने आप कैसे काम होगा. विद इन 3 सेकेंड्स मेल चला गया है दोस्त को. देखिए दोस्त, आपको मेल आया क्या? स्क्रिप्टेड सेशन नहीं है, आ गया? आ गया सर, है ना? इसको अभी मेल आ गया गाइस. अगर ये मुझे रिप्लाई नहीं करेगा कितने दिन में, मैं टाइम फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकता हूं बाय द वे. ठीक है, अगर ये मुझे 3 दिन में रिप्लाई नहीं करेगा, अपने आप ये AI टूल इन्हें फॉलोअप भी भेज देगा. मुझे कुछ करना ही नहीं है, बैठ के चाय की चुस्की मारेंगे. ये आप यूज करते हो आर्टिकलशिप में डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन के लिए, जहां पे आप मैन्युअली भेजते हो, बॉस पूछता है भेजा क्या, फिर आप ढूंढते हो कि भेजा कि नहीं. होता है? यस, राइट. अब मैं इसमें एक और यूज केस बता रहा हूं कि हाउ दिस हैज बीन मेड. ये अगर हम सीख लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ही आसान काम है. पता है क्या है? गूगल ऐप स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट डेवलप करके हमको इसमें डालना होता है. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पे है दोस्त. यस, यू कैन टेक योर सीट ब्रदर. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे आप एक्सटेंशन में जाते हो, एक ऐप स्क्रिप्ट होती है. ये ऐप स्क्रिप्ट यू कैन इजीली जनरेट इट थ्रू AI. दिस ऐप स्क्रिप्ट यू कैन इजीली जनरेट इट थ्रू एन AI, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्टिंग. अच्छा, क्या ये चीज मजेदार है? क्या है या नहीं है? है.
अच्छा, इसको आप बहुत सी जगह यूज कर सकते हो. गेटिंग एन ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन इन टूडेज वर्ल्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसे सारे एआई टूल आ चुके कि एक सेकंड में आप ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो, और लिंक्डइन पे तो ऐसे ही भर भर के मिल जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट यू फेस इज व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू समवन, you tend to forget to follow up, or it is a very lengthy process. This things reduces everything. ठीक है, अब मैं भाई को फिर से ईमेल भेजता हूं. ठीक है, लेट मी गेट बैक टू दिस. अच्छा, ये जो है इसे कहते हैं ऐप स्क्रिप्ट. दिस इज व्हाट यू कैन जनरेट थ्रू चैट जीपीटी ऑल्सो. कुछ नहीं है, आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखिए. प्रॉम्प्टिंग की एक छोटी सी टेक्निक सिखा देता हूं जो आप याद रखेंगे सभी. मेरे को जो टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद है, पता है क्या टेक्निक है? उसको है ना चैट जीपीटी को थोड़ा सा डराने का. कैसे डराने का मैं बताता हूं. उसको मैं ये यूज करता हूं स्टेप बाय स्टेप मेथड. उसको बोलता हूं आई वांट टू ऑटोमेट ईमेल कंफर्मेशन टू द क्रेडिटर्स और डेटर्स. फिर उसको पूछूंगा कैन यू डू इट, तो उसके ईगो पे आएगा, बोले हाँ हाँ मैं कर सकता हूं, है ना. फिर उसको बोलूंगा आस्क मी रिलेवेंट क्वेश्चन विच यू विल आस्क मी बिफोर यू आर डेवलपिंग दिस गूगल ऐप स्क्रिप्ट. वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ ऐसे करना है कि ऐसे करना है, कब भेजना है, कितने फॉलोअप भेजना है, किस टाइम पे भेजना है. आपको जवाब देगा. जैसे ही आपको जवाब देगा उसके बाद ये स्क्रिप्ट आ जाएगा. यू हैव टू कॉपी पेस्ट दिस, आपका ऑटोमेशन डन. गाइज, लोगों से आगे बढ़ना है तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट बिफोर समवन एल्स हैव डन. ठीक है, अब एक और डेमो दिखाता हूं सेम इसमें. यू कैन सेट अप अ टाइम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. ठीक है, दिस इज अ टूल विच इज कॉल्ड एज अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट. भाई को भी फिर से भेजेंगे हम लोग. ठीक है, इसमें आप टेम्पलेट भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए, क्या चाहिए. उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में हो जाएगा. तो अब मैं बोलता हूं कि भाई को 1 मिनट में ये फॉलोअप जाए. आई कैन सेट अप अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मिनट कि फर्स्ट फॉलोअप 1 मिनट में जाए, दूसरा फॉलोअप 3 मिनट में जाए. सेम स्टोरी. मैं अब इसको रेडी पे क्लिक कर देता हूं. मेरे हाथ ऊपर है, अपने आप देखिएगा, है ना, ये सेंड हो जाएगा अपने आप. यू विल बी एबल टू सी इट आउट. सेकंड लाइन जहां पे रेडी है, व्हाट इज गोना बी सेंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगता है. देखो सेंड हो गया, अपने आप दिखा रहे हैं नेक्स्ट फॉलोअप चला जाएगा अगले 1 मिनट में. दिस इज अ लेवल ऑफ ऑटोमेशन विच वी गाइज आर डूइंग. एंड व्हाट इफ यू डू द सेम थिंग इन योर आर्टिकलशिप. मजा आ जाएगा यार. बॉस बोलेगा वाह भाई, इंप्रेस हो गया. ठीक है, अब मजेदार चीज, भाई कहां चला गया हमारा? ब्रदर, इस मेल पे आप रिप्लाई कर दीजिए. इसी वाले पे करना, ऊपर वाले पे नहीं. यू जस्ट रिप्लाई ऑन दिस ईमेल. ठीक है, अपने आप ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट मेरा मेल बॉक्स खोलेगा और बोलेगा कि भैया मेल आ चुका है एचआर का, देख लो. तो आई डोंट हैव टू सेंड अ फॉलोअप भी बंद हो जाएगा उसके बाद. तो दैट इज अ लेवल ऑफ ऑटोमेशन विच यू आर वर्किंग ऑन. तो ब्रदर आप इसको एक बार रिप्लाई कर दीजिए. हाँ, ये स्क्रिप्ट एक मिनट के ड्यूरेशन पे रन होगी विच इज कॉल्ड एज अ ट्रिगर. हमने ट्रिगर रन किया है 1 मिनट का. तो 1 मिनट बाद हम यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिप्लाई रिसीव्ड दिखेगा विच इज देयर ऑन द लास्ट लाइन. ठीक है, तो दैट इज अ फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एआई टूल विच यू कैन लर्न एज अ स्टूडेंट एंड विच यू कैन बिल्ड इट आउट. नॉट अ रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल. जस्ट ट्राई डूइंग इट आउट. ठीक है, पहला एआई टूल. क्या आपको समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है? हेलो, चलो, बैंग ऑन, ग्रेट. लेट्स गो टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन ये तो मैंने दिखा दिया. चलो बताओ अभी कौन बताएगा? डेरिवेल सिर्फ मिलेगा यार, ऐसे मत करो. सच में दूंगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? हे चैट जीपीटी, टेल मी योर फुल फॉर्म. अरे किसको पता है? डेरिवेल सिल्क. किसी को नहीं पता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? हाँ जी भाई, चैट जीपीटी को तो नहीं पूछ लिया? हाँ, क्या बात है भाई, के लिए जोरदार तालियां यार. ठीक है, चलो ग्रेट. हाँ, सेशन का डेरिवेल सिल्क ले लेना याद से. ठीक है, चलो ग्रेट. तो दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ अ जीपीटी विच इज देयर. जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म विच इज देयर. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस. जब भी हम किसी भी एआई टूल पे जाते हैं, हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, राइट? वी राइट अ प्रॉम्प्ट कि हमको ये चीज दे दो, वो चीज दे दो. एक टेक्निक मैंने प्रॉम्प्टिंग की आप सबको सिखाई है, याद है क्या है? डायरेक्टली नहीं पूछने का उसको बोलेगा क्या तू ये कर सकता है? बोलेगा हाँ, तो करके दिखा. दैट इज वेयर यू सेट अ कंटेक्स्ट ऑफ एन एआई विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन दिस केस
इट इज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल, मतलब कि जितने भी आप एआई टूल्स पे जाएंगे, जो भी आप एआई टूल्स पे जाएंगे, लेट अस गो टू चैट जीपीटी, लेट अस गो टू जेमिनाई, है ना, देख लेते हैं अभी इसका रिप्लाई रिसीव आ गया, देखोगे रिप्लाई रिसीव्ड आ गया क्या? अपने आप हो गया गाइस, अब फॉलोअप भी बंद हो जाएगा। तो दैट इज अ लेवल ऑफ ऑटोमेशन विच यू कैन डू इट फॉर योर कंपनीज, फॉर योर क्लाइंट्स, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जब भी हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, यू गो टू एनी ऑफ द एआई टूल, आप कोई भी एआई टूल पे चले जाइए, है ना, मान लीजिए अभी हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो वंस यू ओपन दिस चैट जीपीटी, यहां पे यू विल बी एबल टू सी मल्टीपल मॉडल्स, राइट। दिस मॉडल्स, एवरी मॉडल्स हैव बीन ट्रेन्ड अप टू सम डेज, राइट, हर एक का ट्रेनिंग होता है। अज्यूम दिस एज इज योर आर्टिकल। सबसे अच्छी चीज जो आप सबको करना है और कर लेंगे आफ्टर दिस सेशन, और वो ये है कि whenever you are going home, the first thing you do is you click on your photo, यहाँ पे एक लोगो दिखेगा, you click on it and personalize your AI tool. तो जैसे आप इसको personalize करेंगे, तो what will happen? It will give you a better results. जो आपको इसको बनाना है उसको बना दीजिए। आप बोल सकते हो you are the expert in data analytics, you are the expert in DT, you are the expert of CA Inter, you are the all India ranker 1 of CA Inter. वो भी लगे वाह, अब देता हूं जवाब। तो what happens? This reduces the hallucination. Hallucination का मतलब होता है गलतियां, राइट, इससे गलतियां कम हो जाती हैं जब आप इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन को अपडेट कर देते हैं। सर पहली चीज क्या सीखी? पहली चीज सीखी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करेंगे प्रॉम्प्टिंग का। दूसरा सीखा कि भैया कस्टम इंस्ट्रक्शन ठीक कर लेंगे। तीसरा हमने देखा कि एक टूल हमको सर ने बताया गूगल ऐप स्क्रिप्ट, जिसको हम यूज कर सकते हैं गूगल शीट से कुछ भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए। अच्छा, बाय द वे, जो करेगा वो सच में बहुत आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं करेगा वो सोचता रह जाएगा काश मैं कर लेता। तो दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। चलो ग्रेट, गोइंग टू द नेक्स्ट। तो हमने पहला टूल देख लिया, आई टोल्ड यू द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी ऑल्सो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो मान लेते हैं बहुत ही मजेदार चीज, सेकेंड क्वेश्चन में पूछता हूं आपको। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, ठीक है, अभी आपको एचआर का कॉल आया, विद इन फ्यू मिनट्स यू गेट अ कॉल फ्रॉम एन एचआर सेइंग दैट सर आपका इंटरव्यू लेना है 5 मिनट में, बताइए क्या करोगे? इन द नेक्स्ट 5 मिनट व्हाट यू विल डू? मैं हूं क्या उधर? हाँ, पकड़ता हूं अभी मैं से। बताइए क्या करोगे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स? यू हैव एन इंटरव्यू। इफ यू हैव इंटरव्यू नेक्स्ट 5 मिनट, क्या करेंगे? कोई बता सकता है? हाँ, चैट जीपीटी को क्या पूछोगे? चैट जीपीटी को give me some list of questions, okay? Okay? अरे प्रैक्टिकली सोचिए, 5 मिनट तो तैयार होने में ही लग जाते हैं आदमी को। लेट्स अज्यूम यू हैव एन इंटरव्यू, राइट, 2-5 मिनट तो। हाँ जी मैम, आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ, माइक दे दीजिए उनको। Sir, I will press the company link there and ask ChatGPT to play the interviewer role, Okay. and the job role, and conduct a mock test, and what more I can see in few minutes to be more prepared. चलो ठीक है ना, बेचारा। हाँ जी, हाँ जी, लेते हैं, आपसे भी डाउट लेंगे, विच इज देयर, डोंट वरी। तो ऑफ कोर्स आप लोग एआई टूल्स पे जाएंगे, बट सवाल ये है, यू हैव ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट अ राइट एआई टूल फॉर दिस, ठीक है। 2-3 ऐसे एआई टूल हैं जो इस समय पे आपको मदद करेंगे, विच इज वेरी नाइस बट अंडररेटेड। ऐसे कुछ एआई टूल्स है जो अंडररेटेड है और बहुत शानदार मजेदार रिजल्ट देंगे, जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। तो मान लेते हैं मेरा इंटरव्यू है इन वन ऑफ द कंपनी विच इज देयर, है ना। ऑफ कोर्स आई विल जस्ट शो यू द टोकन्स वाला थिंग विच इज देयर, बट मान लीजिए आपका इंटरव्यू है। आप, मेरे हिसाब से, यू शुड यूज दिस एआई टूल विच इज मानस, वेरी नाइस एआई टूल गिवन बाय मेटा। मेटा कंपनी पता है? अरे इंस्टाग्राम को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। तो मेटा कंपनी हैज डेवलप्ड दिस वेरी नाइस एआई टूल विच इज देयर, और ऑफ कोर्स आप प्रॉम्प्ट देंगे, बट प्रॉम्प्ट कैसे देंगे वो आज मैं आपको सिखाता हूं और डेमो भी दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर 2 रूल ऑफ अ प्रॉम्प्टिंग, AI will give you a very good result if you give the prompt step by step. Step by step मतलब पॉइंटर मैनर में। सीए का एग्जाम होता है तो हम पॉइंट में लिखते हैं ना, कि कुछ भी लिख के आ जाते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। सिमिलरली AI कैन अंडरस्टैंड बेटर इन अ पॉइंटर मैनर, कि भैया ये 10 चीजें करनी है।
नाउ व्हाट आई विल डू, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस, एक सेकंड मुझे, हाँ, इसको मैं प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, एक सेकंड दीजिए, let me just copy the prompt, हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आई विल पुट दिस प्रॉम्प्ट, जस्ट ये प्रॉम्प्ट मेरा रेडी है। भैया स्क्रीन एक बार चालू करेंगे क्या? वो आ गया, just I have to update the company name every time. So when I'll do this, I'll just press and enter. It will take 2 minutes of a time to do an entire research. अब ध्यान से देखिएगा ये कैसे रिसर्च करता है। ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा, पूरा डिटेल्स मुझे बता देगा कि भैया कंपनी की कुंडली है। इट विल गिव यू द रिपोर्ट इन 3 पेजेस एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रीड दिस 3 पेजेस। मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया है इसने। अब ध्यान से देखिए, ये पूरे लिंक्स वो ओपन करेगा, देखिएगा एनुअल रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर में देखिएगा, मस्त मस्त इट इज गोना बी ओपनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जो एक इंसान करता है ना, वो कर रहा है। देखो आईटीसी लिमिटेड का इट हैज ओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप। मैं इधर खड़ा हूं। दिस कैन बी ऑल्सो डन यूजिंग परप्लेक्सिटी, वन ऑफ द वेरी गुड एआई टूल, यू कैन ट्राई इट आउट। परप्लेक्सिटी को तो लिया होगा, फ्री में मिल रहा है, जियो बाबा दे रहे हैं हमें, लिया ना? हाँ, तो देखिए अब ये कंपनी का पूरा स्क्रीनर पे चला गया। इट हैज गॉन थ्रू मल्टीपल प्लेसेस, अपने आप कंपनीज की डिटेल खोल रहा है और आपको दे रहा है डेमो। इट इज फेचिंग अ डेटा फॉर यू, मेकिंग अ समरी फॉर यू। 2 मिनट 3 मिनट में आप तैयार हो जाइए, 2 मिनट इसको पढ़ लीजिए। नोबडी कैन स्टॉप यू टू अकम्प्लिश योर गोल। आज की दुनिया में यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड दैट यू आर द स्मार्ट अमंग ऑल, बट दिक्कत यह है, यू हैव टू स्टार्ट, है कि नहीं? देखिए अपने आप एनुअल रिपोर्ट खोल लिया भाई। हमको तो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, एनुअल रिपोर्ट कहाँ है, कैसे होगा, है कि नहीं? मतलब डोंट यू थिंक सो दिस टूल इज कूल गाइस? हेलो, है ना? और ये तो अभी रियल टाइम कर रहा हूं मैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इसको अच्छे प्रॉम्प्ट दूंगा, इट विल गिव मी अ वेरी नाइस रिजल्ट व्हिच इज देयर, राइट? तो अभी इट विल जस्ट टेक 2-3 और मोर मिनट्स और फिर ये आपको पूरा डेटा दे देगा। देखिए पूरे रेशियोज भी निकाल के दे दिया, जिसको हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ये पढ़ के जाना है इंटरव्यू के पहले। So of course, I would be happy if you can have a screenshot of this prompt. इस prompt का screenshot ले लीजिए। It has taken us some time to develop it. तो इसका फोटो ले लो, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, है ना? इंटरव्यू के पहले, है ना? थोड़ी सी चीटिंग अलाउड है ना, ये चीटिंग कर लेना, ठीक है? राइट, तो यू कैन जस्ट हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस, ट्राई इट आउट, इट विल हेल्प यू। बैंग ऑन सर, मजा आ गया, ठीक है? वैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने यही चीज़ किया, बट ही डिड इट इन अ स्मार्टर वे। उसने कंपनी के, देखिए पूरा वेबसाइट अभी छान मार रहा है, मतलब पूरा निचोड़ देगा वेबसाइट को ये, ठीक है? उसने क्या किया, आई विल जस्ट शो यू सम रिजल्ट्स व्हिच इज देयर। इस तरीके से आपको मैं एक फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से यू विल गेट द रिपोर्ट व्हिच इज गोना बी इन वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट व्हिच इज देयर and which you can easily read it out in 4-5 minutes. ऐसे एक पूरा रिपोर्ट आपको बना के दे देगा कि भैया रिटर्न टू इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन असेट कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो दिस इज अ रिपोर्ट, यू विल गेट इट आउट व्हिच इज देयर, ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट इट, बट लास्ट पॉइंट बचा इसका जनरेट होने का। सर व्हेनेवर आई एम गिविंग अ प्रॉम्प्ट, ध्यान से सुनेंगे, क्या सीखा प्रॉम्प्टिंग के बारे में? पहला चीज सीखा भैया स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कोशिश करें 1 2 3 4, है ना, पॉइंटर मैनर्स में दे, सो दैट यू गेट अ बेटर रिजल्ट्स। नंबर 3, द एआई टूल्स हैव बीन ट्रेन्ड अप टू सम डेज, है ना, इसलिए उसको कहते हैं प्री ट्रेन्ड। ओके, नाउ व्हेनेवर यू राइट एनीथिंग, आपको पता है कि आप जैसे एआई को लिखते हो, लेट मी जस्ट राइट एनीथिंग फॉर एआई, ठीक है? मैं एआई को लिखता हूं, My name is शिवम, ठीक है? मैंने उसको लिखा माई नेम इज शिवम।
AI उसको ऐसे नहीं पढ़ता है. AI read the same in the form of a token. AI इसको टोकन के फॉर्म में पढ़ता है. दिख रही है आपको टोकन आईडीज? तो हर एक AI अपने जो लिखते हो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू सम टोकन्स. नाउ लेट्स से अगर आपका फोन होगा, सब अपना अपना एक सेकंड फोन निकाल लीजिए और फोन पे लिखिए, एक प्रॉम्प्ट लिखो, छोटा सा प्रॉम्प्ट है. ओपन एनी ऑफ द AI टूल इफ यू हैव, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. उसको लिखिए सब लोग, स्काई इज, एंटर मार दीजिए. स्काई क्या है? स्काई इज, और आंसर बताइए क्या आंसर आया. स्काई इज द लिमिट आ गया भाई के लिए. अच्छा, आपके लिए क्या आंसर आया भाई? स्काई इज ब्लू. और कोई ब्लू के अलावा? हाँ, स्काई इज क्लियर. सर बोल रहे स्काई इज फॉलिंग. ओके, हाँ, भाई को बोल दिया तुम तो अधूरी बातें करते हो. आय हाय हाय. हाँ, तुम्हारे लिए क्या आ गया? स्काई इज ब्यूटीफुल. क्या बात है. तो तुम उसके कान में क्यों कह रहे थे आगे वाले के इसमें? उसको कहते हैं स्काई इज ब्यूटीफुल. ओह, यू टू. मजाक कर रहा हूं भाई. सच में बोला था क्या? हाँ, द स्काई इज नॉट द लिमिट, है ना भाई. ऐसा कैसे सबको अलग अलग आंसर आ रहा है? ये तो चीटिंग है. हाँ, ये तो चीटिंग है ना. आंसर एक, जवाब अनेक. हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हेन यू रन दिस मॉडल. जब भी आप AI टूल्स को देते हो, पहला ये होता है हेल्यूसिनेशन, क्योंकि आपने उस मॉडल को ट्रेन नहीं किया है, पर्सनलाइज नहीं किया है. पहली चीज, मैंने अगर यही प्रॉम्प्ट जेमिनी में लिखता और उसमें लिखता आई एम बेस्ड आउट ऑफ पुणे, तो बोलता स्काई इज विंडी टुडे और स्काई इज क्लियर टुडे. इट विल लुक द पुणे लोकेशन का वेदर एंड इट विल गिव मी. तो क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड द सेम. AI क्या होता है? हेल्यूसिनेट करता है. हेल्यूसिनेट मतलब गड़बड़. बट दिस बिकम्स बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम when you use it, where it develops its memory. Number 2, it was giving a multiple answer because the prompt was wrong. Prompt गलत था ना, उसमें हमने बोला ही नहीं बस स्काई कैसे है बताओ. तो स्काई, सभी आंसर सही थे वैसे, all the answers were correct. Please understand. But if I ask him what the sky is dash in Bhubaneswar, तो भुवनेश्वर का देख के बताता आज. तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग समझना है कि भैया प्रॉम्प्टिंग जब हम लिख रहे हैं तो थिंक लाइक अ लेमैन, से लाइक अ लेमैन. उसको बोलो कि भाई तू मेरा इंटर्न है, उसको जीरो से बताना पड़ेगा. बट अगर अच्छे से बताओगे तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट. इफ विल नॉट टेल इट, नहीं तो फिर वो भाई को ब्यूटीफुल ही दिखाएगा, है कि नहीं? तो दैट इज हाउ इट गोस. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन विच इज देयर. नेक्स्ट, बच्चा मेरे को आके बोलता है सर बहुत तकलीफ हो रही है, आई एम अंडर अ डीप पेन. ओके, आई वॉन्ट समवन टू टॉक. ओके सर, कोई है जो मेरे से बात कर सकता है, दुख बांट सकता है? ऑफकोर्स AI इज ऑल्सो समवन वेयर यू कैन टॉक. बट आई विल टेल यू हाउ यू कैन टॉक इट आउट. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु कम टू मी बिफोर एन इंटरव्यू कहते हैं कि सर इंटरव्यू तो निकाल लूंगा बट थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है मेरा, कुछ कर सकते हो तो बताओ. अरे भैया, ChatGPT जिंदाबाद, लेट मी सी इट आउट. देयर इज अ ऑप्शन ऑफ वॉइस हियर, ठीक है? लेट्स क्लिक इट आउट हियर. Please help me improve my English. Ask me some interview questions in English. I'll answer it. After that, you give me another question. Let's start with something common. Can you tell me about a challenging project you've handled recently and how you approached it? Okay, I handled some project related to AI. That sounds interesting. What specific challenge did you face in that AI project and how did you overcome it? I want to learn Gujarati. Help me learn Gujarati. Sure, I'd be happy to help. Let's start simple. How about a common greeting? In Gujarati, to say hello, you can say Kemcho, which means how are you? Go ahead and try saying that. Ask me some questions in Gujarati. I'll answer in Gujarati. બરાબર. ચાલો શરૂ કરીએ. તમે તમારા કામ में सबसे ज्यादा गर्व ક્યારે અનુભવ્યો હતો? Describe કરો. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एनी ऑफ द लैंग्वेज हियर, है ना? इफ यू वांट टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेनिश, फ्रेंच, उड़िया,
और एनी ऑफ द लैंग्वेज, जो सीखना है सीखो। और सबसे मज़ेदार चीज़ है, इट्स अगेन अ फ्री, राइट? AI टूल है, सबके पास है, एंड यू हैव टेकन द फ्री सब्सक्रिप्शन। और नहीं भी है तो अगेन यू कैन यूज इट आउट इन अ फ्री मॉडल। डोंट यू थिंक सो? इट्स वेरी कूल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज वी आर स्टैंडिंग ऑन द लाइन एंड वी आर नॉट फ्लाइंग। ज़्यादा देर अगर एयरपोर्ट की पट्टी पे खड़े रहोगे तो आपको निकाल दिया जाता है, पता है ना? अगर प्लेन डिले करता है तो उसको बोलता है चलो साइड में, बाकी लोग को जाना है आगे। People will not wait for you. Those who will start will be ahead in the race. Those who will not start, right, they will always face a consequence. ठीक है? तो that was a second AI tool which is there, right? अब दो तीन AI tools और फटाफट बताता हूँ which is there which will help you. Next AI tool पे जाते हैं, which is one of my favorite is a Notebook LM. कितने लोगों को पता है Notebook LM के बारे में? पहले बताएंगे। क्या बात है, आप लोग काफी लोग अवेयर हैं, कुछ लोग नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू सम डेमो ऑल्सो। नोटबुक LM इज वन ऑफ द टूल वेयर यू कैन यूज दिस टूल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, राइट? थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं और मैंने क्या किया है और कुछ लोगों ने कैसे इसको यूज किया। लेट्स सी इट आउट जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब मान लीजिए, ध्यान से देखना, मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है सर MRF कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मुझे पढ़ना है, बट इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, और मुझे कुछ ऐसा कंपनी को बना के देना है कि देख के वो मुझे बोले कि वाह तू ही है वो। आहा, तो उस बंदे ने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, उसने नोटबुक LM पे गया। इट हैज सिंपल क्लिक ऑन अ स्लाइड डेक एंड आफ्टर दैट इज द नोटबुक LM हैज हेल्प्ड हिम टू मेक हिम वेरी नाइस डेक विच इज देयर ऑन द स्क्रीन। जो एक इंसान को बनाने में घंटों लग जाएंगे या सालों लग जाएंगे, इट हैज गिवन इट इन दैट लेवल। Now what he has done, the benefit of Notebook LM tool is, वो उसी के बाउंड्री में काम करता है। मान लो आपने CA फाइनल का स्टडी मटेरियल डाल दिया, मैं सबको कहूंगा बना लो, हर एक सब्जेक्ट का बना लो, सिंपल नोटबुक। किसी फैकल्टी के लेक्चर भी डालना है वो भी डाल दो, ICA के लेक्चर डाल दो, सब डाल दो, और उसको जो सवाल पूछना है मस्त पूछना, क्योंकि वो उसके अंदर ही जवाब देगा, वो बाहर का कुछ जवाब नहीं देगा। दैट इज वॉट यू हैव टू डू। क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। जैसे ही आज सेशन खत्म होगा, फटाफट दौड़े घर जाएंगे और घर जाके सबसे पहला काम करेंगे, क्रिएटर नोटबुक पे क्लिक कर देना। जैसे क्रिएटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ये बोलता है क्या आपको अपलोड करना है, बोले हाँ। फाइल अपलोड करना है, फाइल करिए, वेबसाइट करना है, वेबसाइट करिए, ड्राइव करना है, ड्राइव करिए, आपको कुछ वेबसाइट से सर्च करना है वो कर दीजिए। जैसे ही यू विल अपलोड द सेम, इट विल शो यू ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो सवाल आपको पूछना है उसको आप पूछ सकते हैं। तो कैसे दिखता है वो भी मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने इसको अपलोड किया, यहां पे मैं इसको एनीथिंग आई कैन आस्क रिलेटेड टू MRF एनुअल रिपोर्ट हियर, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। क्या मैं CA फाइनल के किसी के मैराथन डाल दो, CA फाइनल का ICA का मटेरियल डालना है डाल दो, और कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो आस्क दिस AI टूल। देयर लॉट ऑफ फीचर्स, यू कैन जनरेट अ वीडियो, यू कैन जनरेट अ ऑडियो। इस ऑडियो से तो आप बात भी कर सकते हो। मान लो आपको कभी बोर हो रहा है जीवन में, तो you can again come here, right? And you can also have a good discussion with this audio. There's an option of interactive. So you can also interact with this audio. है ना? आप ये दो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में आप जाके बात कर सकते हो। जैसे कि I'll just play the conversation and I can join the conversation. Can you please let me know the profit of MRF for the last financial year 24-25? है ना? तो you can just ask the question here. अभी मैं I'll just stick to timing which is there. बट येस यू कैन इंटरेक्ट विद द सेम, यू कैन टॉक टू द सेम। एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ जो स्टूडेंट ने किया था, बिकॉज ऑफ विच ही गॉट इनटू वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी। बच्चा मेरे को कहता है कि सर मुझे एक कवर लेटर बनाना है, मेरे रेज्यूम तो मैंने बनाया है बट आई वांट टू मेक इट स्टैंड आउट। तो उसने क्या किया, ही हैज पुट हिज रेज्यूमे, आफ्टर दैट इज डन he has put given a small prompt and after that is done he has prepared a very nice financial model using a cover letter, using a notebook LM. आप देखिएगा क्या शानदार फाइनेंशियल मॉडल बना है। दिक्कत क्या है पता है, शुरू कर नहीं रहे आप लोग। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो सोचता रह जाएगा। एंड दिस इज व्हाट कंपनीज आल्सो लुक फॉर। नॉलेज सभी के पास है, बस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं हम सही जगह। तो यू डू इट आउट, ट्रस्ट मी यू विल लव इट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज यू हैव टू स्टार्ट, है ना? जैसे एक शानदार कवर लेटर बनाया, मेल भेजा, उसको सिलेक्शन कॉल आ गया। सेम वन ऑफ माई स्टूडेंट मिस्टर विशाल, बंदे ने दुबई में जॉब लिया इंडिया में बैठ के। उसने क्या किया पता है, उसने एक सेक्टर रिसर्च रिपोर्ट भेज दिया दुबई के मेंबर्स को। ही गॉट अ जॉब सिटिंग इन इंडिया, अर्निंग इन दिरहम्स, मेकिंग अ मनी आउट ऑफ इट। सिर्फ उसको एक AI टूल पता था इस चक्कर में।
ठीक है, तो दैट इज द थर्ड नंबर ऑफ AI टूल विच इज द नोटबुक LM. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, ये ChatGPT का तो मैंने डेमो दिखा दिया. फोर्थ, नैपकिन. राइट, ये वो वाला नैपकिन नहीं है. हाँ, नैपकिन AI अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल फॉर योर स्टडीज एंड स्टफ. आप जब भी कोई चीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मान लो आपको बहुत कॉन्सेप्ट बड़ा लग रहा है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, क्या करिएगा, उस कॉन्सेप्ट को कॉपी करिए और नैपकिन AI में डाल दीजिए. अब जैसे ही व्हेन यू विल पुट इट आउट इन द नैपकिन AI, ये पूरा आपको एक बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में चीजें दे देगा. कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा है उसको आप नैपकिन AI पे डाल दीजिए, उसको क्लिक करेंगे, इट विल गिव योर डेटा इन दिस फॉर्मेट विच इज वेरी नाइस. आपको जो रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है ना कि भाई मुझे याद नहीं रहता यार, इतने बड़े बड़े पॉइंटर्स कैसे याद रखूंगा, लॉ के, ऑडिट के, ये प्रोविजंस कैसे याद होंगे, कुछ नहीं. जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समराइज कर लीजिए यूजिंग अ नैपकिन AI. वेरी नाइस AI टूल. ठीक है, दैट इज द नैपकिन AI. एंड द लास्ट है ना, लेट्स सी व्हाट वी डू इन आर्टिकलशिप नाउ ऑटोमेटेड. एक छोटा सा AI टूल दिखा रहा हूं जिससे देखकर आपको मजा आ जाएगा. आर्टिकलशिप में आप लोग वाउचिंग वगैरह करते हैं क्या गाइस? करते हैं, बहुत बढ़िया, किसी ने दिल से यस बोला है. हाँ. ये देखिए, एक इनवॉइस दिखाता हूँ आपको. मैं हैदराबाद गया था तो उधर एक थोड़ा सा इडली विटली खाया. जज मत करिए, जो खाया मैंने उसको देख के, है ना, तो खाया है ना मैंने मस्त एकदम. ठीक है, ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो ऐसे ही बिल विल आते हैं, आपको बिल आते हैं. अब हम लोग बैठ के एक एक मैनुअली चेक करते हैं कि भैया एक्सेल में इतना है, इसमें इतना है, टिकी टिकी, है ना, टिक करते हैं, खत्म. आज से करने का जरूरत नहीं. कैसे सर, बताइए. एक छोटा सा हमने AI टूल डेवलप किया है इसके रिगार्डिंग भी. लेट मी जस्ट शो यू द सेम. एक सेकंड दीजिएगा. इसको मैंने डेवलप किया है गूगल AI स्टूडियो में, है ना, गूगल AI स्टूडियो में. ठीक है, ये भी बहुत शानदार टूल है गूगल का, मजा आ जाएगा आपको देख के. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. एक सेकंड लगेगा बस लोड होने को कोड. वेरी इंटरेस्टिंग टूल. ठीक है, मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूँ. इट इज जस्ट टेकिंग अ टाइम टू लोड, है ना. बैक टू स्टार्ट. एक सेकंड दीजिए प्लीज. हाँ, आ गया ना. ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो इनवॉइस मेरी थी उसको मैं डालता हूँ इधर. लेट मी जस्ट अपलोड द इनवॉइस व्हाट आई हैड. ठीक है, आई एम अपलोडिंग दैट इनवॉइस जो मैंने डोसा वोसा खाया था, और इसको मैं स्कैन कर लूंगा. द ब्यूटी ऑफ दिस इज इट विल पुल आउट द एंटायर डेटा फ्रॉम इनवॉइस इंक्लूडिंग GST नंबर, अमाउंट, डिटेल्स, और जो भी मुझे डेटा है वो दे देगा. और इसको आई कैन इजीली रिकंसाइल विथ माई एक्सेल फाइल विच इज देयर. देख रहे क्या, पूरा डेटा आ गया. इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम, GSTN नंबर, टोटल अमाउंट. यू कैन वेरीफाई द सेम विथ AI टूल. ये मैंने मैनुअली नहीं किया है. 500 इनवॉइस है, 500. वाउचिंग करना है, कुछ नहीं, अपलोड कर दो टूल पे. सर तो अब बच्चा बोल रहा है अब आर्टिकलशिप में मैं करूंगा क्या? अरे यही चीज तो ऑटोमेट करना है आपको. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस, है ना. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस आउट विच इज देयर. तो जो मैंने इनवॉइस डाला था ये यहाँ से पुल आउट हो गया. एंड दिस इज हाउ डू यू अगेन डू एन ऑटोमेशन विच इज देयर. तो दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, and that is what I wanted you to understand. And with this, the last AI tool, very interesting AI tool, Merlin.ai. बहुत शानदार AI टूल है Merlin.ai. अभी तक मैंने आपको 4 टूल बताए थे, दिस इज द 5th वन. Merlin.ai मुझे बड़ा ही प्यारा टूल लगता है क्योंकि इट विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ स्टेजेस एंड प्लेसेस अराउंड. जैसे कि मान लीजिए मुझे YouTube का किसी का समरी बनाना है, टाइम स्टैम्प बनाना है, तो ये आप बना सकते हो. सबसे अच्छा मुझे तो इसको यूज करता हूं व्हेन आई एम सेंडिंग अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू एनीवन ऑन लिंक्डइन, और आई हैव टू कमेंट्स ऑन समवन पोस्ट. मान लो जो मुझे किसी के कमेंट पोस्ट पे कमेंट करना है, ये ऑटोमेटिकली जाके कमेंट कर देगा.
कमेंट पे जाएंगे, उसको बस AI को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. वेरी सिंपल टूल, यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, Merlin AI. एक बार आप इसको यूज करेंगे, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू लॉट. मान लीजिए आप किसी के वीडियो को समराइज करना चाहते हैं, नाउ इट इज Gemini हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड दैट फीचर, बट यू कैन यूज दिस आउट इन वीडियोस और ऑन LinkedIn टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज पोस्ट व्हिच इज देयर. तो ये आप यूज करिए, ट्रस्ट मी, इट इज गोना बी अ गेम चेंजर एंड इट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट अ लॉट. लास्ट थिंग बिफोर आई क्लोज, I have incorporated a very nice AI prompt book which is there, है ना. मैं आपको वो बुक भी दिखा देता हूँ. ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाई है ना. बहुत शानदार AI बुक है, जहाँ पे बच्चा मुझे कहता है कि सर हमारे लिए बताइए ना, स्टडी प्लान बनाना है कैसे बनाएंगे, उसके लिए प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने डाल के. सर मुझे कुछ रिवीजन करना है कैसे करेंगे वो बताइए. सर मुझे किसी कॉन्सेप्ट में मास्टरी चाहिए उसके लिए बता दीजिए. सर एग्जाम में आंसर अच्छे कैसे लिखे उसका प्रॉम्प्ट बता दीजिए. और सर मुझे आर्टिकलशिप में मुझे जीना है और अच्छे से मैं कैसे काम कर सकता हूँ वो उसके लिए बता दीजिए. या मुझे करियर पाथ में ग्रो करना है उसके लिए कुछ बता दीजिए. सर रेज्यूमे और लिंक्डइन कैसे सही करें या रिव्यू करवाना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट दे दीजिए. राइट, तो दिस इज अ वेरी गुड AI प्रॉम्प्ट बुक विच इज देयर. यू कैन जस्ट स्कैन इट आउट, यू विल गेट इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. आपके ड्राइव का वो आएगा, तुरंत डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, है ना. तो कीप इट हैंडी, कीप इट सेव्ड. इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस सेशन इज आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट. मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें. राइट, डज नॉट मैटर, ये मत सोचो कि मैं जल्दी हूं या लेट हूं, इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना गाइस. ठीक है, दैट इज देयर. लास्ट थिंग बिफोर आई क्लोज, आई होप आई वॉज काइंड इनफ टू शो यू अ डेमो इन द गिवन टाइम कंस्ट्रेंट टू कन्विंस यू कि भैया AI यूज करना चाहिए. तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर कन्विंस कि अब AI यूज करेंगे थोड़ा बहुत. अरे यस और नो, जोर से बोलो, सारे बोलो, क्या बात है. ठीक है, तो विद दिस जस्ट द लास्ट थिंग विच आई ऑलवेज से इट आउट, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेवेंट टू द पार्ट, बट आई ऑलवेज से इट आउट. नेटवर्क बिल्ड करना भी चालू करो, बिकॉज दिस कॉन्फ्रेंस विल गिव यू व्हाट यू कैन नेवर थिंक. राइट, the committee, the entire team has been literally putting a lot of efforts for you for day and night to ensure that you get the best out of best things which is there. Right? सच में बहुत मेहनत लगती है पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. राइट, तो आप यहाँ पे जो आते हो ना, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ही बैठते हो, नए लोगों से मिलो, meet new people and build a network so that when you need a network you don't have to network. Right, so better you network now so that you can reach out where you deserve and ensure that you are working to the level which is best. बाकी तो हम फोड़ लेंगे, बाकी तो हम बढ़िया कर लेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है. And with this, I'll just end my session, which is there. This is me, Shivam Palan. Thank you, entire Bhubaneswar team, entire committee for inviting me. It was a great interacting with all of you guys. Thank you, guys. Thank you so much, sir, for that incredibly insightful and engaging session. I'm sure everyone here has gained a completely fresh perspective on how AI is transforming the CA profession and why staying updated with technology is so important today. We shall now begin the paper presentation segment. Our first presenter is Ms. Nida Fareen from Bhubaneswar, a CA final student with a keen interest in learning and professional development. May I now please invite Ms. Nida Fareen to present her paper on how AI is transforming taxation and compliance, practical case studies. Please welcome her with a huge round of applause. నా పాకెట్ నా ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଆଉ ପଛପଟେ କରିବେ କି? Okay, forward back.
Okay, this is for all the student paper presenter. You will get total 12 minutes. At the end of first 10 minutes, we'll ring the bell once, and at the end of 12 minutes, we'll ring the bell once again. Okay, this is for the time that you have to abide by that time management things. Okay, all the very best to all the participants. Should I start? Hello everyone, respected chairperson, eminent guest, and our distinguished jury. When we hear artificial intelligence, many of us used to think of some futuristic technology, robots, or some complex algorithm. However, AI has already entered our everyday professional lives. It is helping businesses automate routine tasks, manage invoice, analyze large volume of data, and generate tax research and much more efficiently than ever before. The taxation and compliance landscape is growing increasingly complex. Regulatory requirements are evolving rapidly. Businesses are expected to achieve greater accuracy, transparency, and more efficiency in their everyday working. In this environment, AI is emerging as a powerful tool that enables professionals work smarter, reduce error, and focus on high-value advisory and strategic functions. AI is not going to replace professionals. Rather, it is a powerful tool that will enable us to enhance our decision-making capabilities and our professional expertise. The real advantage does not lie in the AI itself, but on how we use it to solve our everyday business problems. Today, the question is not whether AI will impact taxation and compliance. The question today is how we as future professionals can use AI to provide greater value to our clients, organizations, and stakeholders. Over the next few minutes, I will be demonstrating few practical case studies on how AI is transforming taxation and compliance, the key benefit it delivers, and lessons we can take away as future-ready professionals. Our first case study is one of the most complex challenges that almost every organization faces, that is processing GST invoices. A company may receive thousands of invoices every month from multiple vendors. Traditionally, each of these invoices was manually reviewed and entered into the ERP system. This process is time-consuming, repetitive, and prone to human error. Now imagine an AI-powered invoice processing system. The moment an invoice is received by the company, whether as a PDF, a scanned document, or an email attachment, the AI system reads it through its intelligent document processing technology and pushed it directly into the ERP system. The process, which earlier required few minutes per invoice, can now be completed within seconds. The important point here is that AI will not replace accountant. Rather, it will eliminate the repetitive data entry task, allowing tax team to focus on review, analysis, and exception management. Our next case study is one of the most critical areas in taxation and compliance, that is could be fraud in is challenged by continuously analyzing the transaction pattern, vendor behavior, and historic data. For example, suppose a newly registered vendor starts issuing high-value invoices. The AI system will identify this as an anomaly and generate an alert. Similarly, if similar invoice number appears across multiple transactions and some vendor behavior deviates significantly from their existing pattern, the AI system will generate an alert
allowing tax team to focus on high-risk area instead of manually reviewing each transaction. This has resulted in improved internal control, faster fraud detection, and better compliance. Our third case study is probably the most impactful applications of AI, that is AI-powered taxpayer assistance and virtual agent. These AI technologies use artificial intelligence along with the natural language processing technology to interact with the users. Karsathi and Geeta are newly launched AI tools launched by the Indian government Income Tax Department and Goods and Service Tax Network respectively. Geeta is an AI tool that provides explanation to complex tax laws, deductions, filing processes in simple language. These AI chatbots are available 24/7 round the clock, assisting users. This reduces the waiting time and improves the overall taxpayer experience. This AI system also reduces the manual workload for administrative departments, increases their service efficiency, and consistent and regular responses to the queries. As AI continues to evolve, AI virtual agents will become one of the most essential components of modern-day tax administrative system. Our fourth case study is input tax credit management. Input tax credit management is one of the most critical and closely monitored areas under GST. Organizations face challenges such as GSTR2B mismatch, suspicious vendor filing behavior, non-compliance, and ineligible credit claims. The AI system continuously studies the vendor filing behavior, regulations, and purchase records and GSTR2B. Let's understand with an example. Suppose a purchase invoice is recorded in company's book of account. However, the similar corresponding invoice does not appear in GSTR2B. Instead of identifying this anomaly weeks later during periodic reconciliation, AI will immediately detect this discrepancy and generate an alert. AI also analyzes the vendor filing behavior to recommend whether to withhold credit for further verification. This has resulted in reduced reversals, better ITC realizations, and far better compliance. Our fifth and final case study is taxpayer risk alerts and notice prevention. Identifying missing entries, mismatches, or errors before they result in GST legal notices or tax or penalties is probably one of the most common challenges that taxpayer faces. The AI system studies the documents and financial information such as our bank statements, TDS records, ITR filings, annual information statement, and identifies discrepancy before they become a problem. Let's understand this with an example. Suppose Ms. Priya has reported an annual income of 12 lakhs. However, the AI detects that she has entered into some high-value mutual fund investments and property transaction. This anomaly is detected immediately before the returns are filed, and her tax consultant is sent an alert. On further verification, it is found that some of the freelance income had been mistakenly omitted. The returns are corrected and filed, preventing a notice or any legal action. AI reduces the chances of receiving legal notices or penalties. AI helps to detect mistakes before they become a problem. This will enable more proactive return filing. As we have seen through these case studies, AI is already automating multiple tasks. However, the key takeaway is that AI can automate processes, but it cannot replace professional judgment. It cannot replace the trust that clients have put on chartered accountants. It cannot replace our ethical responsibility.
The future belongs not to AI alone, not to professionals alone, but to professionals who learn to work effectively with AI. As AI continues to evolve, our roles will also evolve along with it. If we embrace this technology and learn how to work effectively and responsibly, then this tool will become one of the most important tool in our professional toolkit. Thank you everyone for your time, and I hope this presentation was insightful. Just a minute. Before the next student speaker comes to speak, let me interact with the audience once, because when we are judging, there's a lot of noise coming from the backside, and you have to appreciate the fact that these 3 students are CA students only. तो जो आप हैं वही हैं, तो उनकी जगह पे आप भी हो सकते थे, अभी फिलहाल वो आपकी जगह पे हैं. And a very basic minimum level of courtesy we can maintain by keeping ourselves silence, because हमारे को मज़ा तो आ ही रहा है क्योंकि जोक एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. लेकिन अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हैं वो. आप एक बात समझिए, यहाँ उनको हार्डली 10 मिनट का बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसे सारे बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत सारा तैयारी करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए हैं. तो आप एक बेसिक लेवल का प्रोफेशनल कर्टसी मेंटेन कर सकते हैं कि साइलेंस मेंटेन करते हुए उनको सुनना है, करना कुछ भी नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उनको उतना मिनिमम रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जो वो लोग डिजर्व करते हैं? आप लोग अगर इस बात से अग्री करते, प्लीज रेज योर हैंड. तो मैं अभी आने वाले टाइम में आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा, व्हेन एनी स्पीकर इज स्पीकिंग फॉर दैट मैटर, प्लीज रिमेन साइलेंट. एक बार वो खत्म हो जाए, फिर बाहर जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फोटो उठाएंगे, वहां तक ठीक है. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. एक बार दोबारा से ताली बजाइए बच्चों के लिए. Thank you, Ms. Nida Fareen, for that insightful presentation and for sharing your valuable perspectives with us. Our next presenter is Ms. Shivangi Aprajita from Hyderabad, known for her strong academic and presentation skills. She was adjudged the overall best presenter at the Pune National Conference and is also a 2-time regional NTS qualifier in debate. I now invite Ms. Shivangi Aprajita to present her paper on AI in Forensic Accounting and Fraud Detection. Please give her a huge round of applause. Jai Jagannath. Louder, Jai Jagannath. That's the spirit. And I wanted all your attention because today I need your help. In the next 10 minutes, we are going to immerse ourselves in a case study. Not as an audience, not as judges, but as a part of my forensic investigation team. And today, we are going to look into a company. And your task is very simple. Identify the fraud in it. I will give you 3 clues. Individually, they do not point out to any fraud, but together, they will uncover something. And let's see if we can find that out. So, before we begin, I want to place a verse from Bhagavad Gita in this room. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagrati sayami. The Bhagavad Gita tells that what remains unseen by most is often seen by the disciplined observer. And that is the principle which exactly works on forensic accounting. Because fraud rarely announces itself. It hides in patterns that everyone considers as normal. So, let me introduce you to the company that we are going to study. It is Meridian Industries, a mid-sized manufacturing company with 3 years of clean audit opinions, strong internal controls,
and healthy growing balance sheet with no regulatory observations as well. Who would not like to invest in such a company? So before we begin into our investigation, I want 5 people from the audience, and I will hand over them these 5 invoices of Horizon. In that process, businesses are messy, reality is messy, and the records that should worry us the most are the ones that look completely flawless, because fraud hides in patterns and does not announce itself. Now, just imagine the Satyam scam, which had 7,561 fabricated documents, each designed to pass the individual audit, but none of them designed to be compared against the other 7,560. The Island FS scam, that is 91,000 crores together across 348 entities. And behind these scams are families, pensioners, investors who trust these numbers. And according to the ACFE's global fraud data, which is the most comprehensive global study about fraud we have, it tells that on an average, a fraud runs inside a company for 12 long months, that too undetected. And before we get towards our 3 clues, I want to tell you about a framework, that is Donald Creasy's fraud triangle. A fraud requires 3 things to operate. First one is pressure, next is opportunity, and the third one is rationalization. Can any one of you answer which one the AI can detect? It's opportunity. Because AI can detect the patterns, AI can find anomalies, AI can connect relationship between millions of data points, but what AI cannot do is the fear, the greed, the desperation, and the intention of doing a fraud by a human. So that is what AI cannot do. So let us move forward to our 3 clues that will lead us to the fraud. First one is Benford's law. AI runs across 36 months of data across 3 years and finds 14 anomalies. 13 of them are very legitimate, but that one stands apart from Horizon Logistics. And here, it finds that all the invoices of Horizon Logistics cluster just below 5 lakh rupees. But why? Because that is the approval threshold of the company. Can any human ever map these patterns together and say that all the invoices are already below 5 lakhs? Does it even look humanly? No, but AI can do this. The second clue is the documents, that is language processing model. Can all the 5 members come back to the stage and just read the service description that has been highlighted in the invoice? Transportation support services for regional distribution operations. Transportation support services for regional distribution operations. Transportation support services for regional distribution operations. Yeah. What did we just look? This is the description that was written. It is same in all of them. But unless and until we compared them with each other, we did not know that this kind of same description has been surfaced over all the fabricated invoices. So this is our second clue. And I don't think that any human would have been able to connect these patterns over the 36 months in those 47 invoices, which AI has done in minutes. Now let's move forward to our third one, that is network mapping. AI now maps relationships. The Horizon Logistics shares a registered address with another business, and that business has a common director linked to Meridian. And this director is into a business that is linked to Meridian's procurement head's immediate relative. Now that's a lot of information to be absorbed by a human.
इतने से ही हमारा दिमाग खराब हो गया. तो just imagine what would have happened in ILNFS, which operated over 348 entities together. That is what the scale at which AI works, and which no human can do it in hours, which can be done by an AI in just few minutes. So these were the 3 clues that we found out. So apana mane khushi to? So do you think that we have already found out the fraud by these 3 clues? That is where forensic investigation fails, because AI just found the suspicion and we did not found the fraud yet. The forensic accountant still has the work to be done. Were the invoices supported by supporting documents? Were the services actually delivered? These are the questions by forensic accountant. And AI identified the patterns. The humans should establish the truth. And at this point, it is very tempting to believe that AI solves everything, right? But it actually doesn't, because sometimes AI operates as black boxes, which gets you the conclusion, but it does not always tell how did it find it. And in Indian courts, when the AI flags an evidence as a fraud, and the defense counsel asks, how did you get into this conclusion? The profession still does not have a settled answer for AI admissible frauds and evidences. And that, my friends, is not a small problem. Okay, so now the real question is not that whether AI will eat away the forensic accountant's role, but the real question is what kind of forensic accountants will thrive in an AI world. And the answer, I don't think, is very complicated, because the person who knows how to question, who knows how to think beyond what the normal people do, will thrive. Because AI cannot exercise professional skepticism, and AI cannot decide whether a story makes sense, and AI cannot challenge whether the management is right or not. That responsibility still belongs to us. So we started today with our disciplined observations, and we, in the last 10 minutes, became the same thing. We observed the patterns, we mapped the relationship, we found the clues, and remember those 5 invoices, they looked completely legitimate. Did you find the individual invoices to be wrong or something? Like, did they contain anything suspicious individually? No, right? That is the problem, because we do not compare them. Until and unless humans, the AI compares the problems and the investigations that are done, we do not come to a conclusion. And all the frauds that we talked about today did not just exist because nobody looked. It existed because nobody looked far enough. And today, I want to, before I conclude, I want to conduct one final audit. Not of ILNFS, not of Meridian, not of Satyam, but of ourselves. When we go to our offices tomorrow, into our articleships, into our boardrooms, into our investigations, will we still become the disciplined observers? Will we challenge the narrative? Will we look forward to what others consider normal? Because AI will flag the pattern, AI will find the anomalies, but when the time comes to challenge the narrative, to protect the investors, to defend the truth, AI will not be sitting in that room, we will. And you must be wondering why I did not just glorify AI, because my objective here was to draw a clear line of distinction between what AI can remarkably do well and what it can never. And that precisely intersects the human intelligence and artificial intelligence, which defines the role of artificial intelligence in fraud detection and forensic accounting, which forms the heart of this paper. So I am Shivangi Aprajita, a native of this land, Odisha, but came from Hyderabad to present on this beautiful topic, and I take your leave. Thank you. Jai Jagannath.